Let's start. So, what is item analysis? So, item analysis is examination of individual items. As name suggests, नाम से भी आपको पता लग रहा होगा कि it is a examination of individual items on test rather than the test as a whole. You analyze each and every item of the test. What is item? That we have discussed yesterday. Different type of like questions and any individual thing that we call item, right? So for its difficulty, appropriateness, relationship to the rest of the test. So how they are related to each other. Suppose you are like trying to find out some construct. You want to assess some construct, not find out. Basically, you want to, you can say, assess some construct, like you can say intelligence or personality or attitude, something like that. So you want to assess that thing, right? So that is like the item must be related to that construct. So then only it will be appropriate and it will be related to the rest of the test. Suppose one item is assessing personality, one item is assessing something else. So it is not a good test. So item analysis one by one for each item we do. Help test to designers determine which item to keep, modify or discard. कि कहाँ पे हमें कौन सा आइटम रखना है, कौन सा नहीं रखना है, किस में मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, that we decide. And this is done with experts. It is not like only one person is doing something like that. So it is not like that, right? So that we have to understand. Then if you and how to finalize the score for the students. If you improve the quality of the items on a test, you will improve the overall quality of the test, hence improving the both reliability and validity. So when we will assess reliability and validity also after creating the test. So if the items are not reliable or valid, then tests also will not be reliable and valid. So each and every item must be analyzed with great details and you can say with critical mind, so that we can find out the right item with right language, as we have discussed yesterday. So that is very important when it comes to test constructions. So objectives of the item analysis. What are the objectives of the item analysis? Item analysis indicate which items are difficult, easy, moderately difficult or easy. As we have discussed earlier, like test item should not be very difficult or very easy. No, it is a with moderate difficulty we use the items. It also provides indices of the ability of the item to discriminate between inferior and superior. Item validity, that also we try to find out, because we try to find out which is the inferior, which is the superior item. Item means whatever questions or multiple choice questions or Likert scale you are using. It tells the effectiveness of the discrete distracts in MCQs. And ये आपको क्या बताता है? Distractors. Distractors means that is deviating from your objectives in MCQ. So also we try to find out. It also indicates why a particular item in the test has not functioned effectively, how this might be modified so its functional significance can be increased. So our purpose is to create the functional significance. Functional significance means
It should be functional. Functional means it should be useful. If it is not useful, it is not assessing what it should assess, that will not work, right? That is not a good item. So types of item analysis. Types of item analysis में क्या क्या आएगा आपका? The two most common indices which item analysis reveals are the index of difficulty value and the index of discrimination value. How they discriminate from other construct and how much they are difficult. Item analysis also aims at knowing the effectiveness of distractors in multiple choice items. This part of the item analysis is known as distractor analysis. So distractor analysis, distractor means जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है उससे वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड सो दैट इज डन विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस, discrimination value, right, and the other thing is difficulty value. These three things, 1, 2 and 3, these three things, these are the types of item analysis you can see. Now, item difficulty index kya hai? Now we'll talk about this. The proportion of the test takers who answer an item correctly. For maximizing validity and reliability, the optimal item difficulty level is 0.50. That is established by statistical analysis. So we are not going into that. When you will study reliability and validity, you will get to know about that thing, right? So maximizing validity and reliability, item difficulty का जो optimal level है, that must be at 0.50. As I said, it should not be too much difficult or too easy. So हमें एक बीच का लेना है. So 0.5 indicates that's moderate difficulty actually. So however, this does not mean every item should have a difficulty level of 0.50. Simply that average of all items should be 0.50. So it is not necessary. Maybe there may be some questions where the difficulty level is 0.6. There may be some question there will be 0.8 or 0.4, something like that. So overall we see, suppose there are 10 items or 100 items, so overall the average है, that must be around 0.05. So that is we say that is a optimal value. If an item is answered correctly by 90% of the examinees, it obviously means that the item is relatively easy. Likewise, if an item is answered correctly by only 3% of the examinees, it means that item is a difficult one and it is not discriminating well among the examinees, and the higher level of trait being measured or is discriminating only among superiors and genius examiners. Let's understand this with an example. Suppose there is a exam or test, you can say, or MCQ, जहां पे आपने 100 population पे वो किया. कैसे करते हैं? This is a very common sense thing with statistics, you can say. So suppose आपने टेस्ट किया और 90% लोग उसको करेक्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? ज्यादातर लोग ठीक कर दे रहे हैं, तो उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है? बहुत कम है. कैसे आप करेंगे? भाई कोई आपका एग्जाम हुआ, आपके और सभी लोगों ने 90% स्कोर किया, 95% स्कोर किया सारे लोगों ने, तो इसका मतलब पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है, क्योंकि सारे लोग एक जैसा तो नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब इट इज वेरी इजी. और अगर बहुत कम लोग कर पा रहे हैं तो इट मींस इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो टू examine those things, we have to administer those items, those tests on different population जिसके लिए आप बना रहे हो वो टेस्ट. समझ में आ रही है बात? Any question?
समझ में नहीं, बहुत कॉमन सेंस है ये, है ना। दो एनालिसिस जब हम करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं इन सारी चीजों के लिए, है ना। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो अब क्या हो जाए, अगर 50% लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कुछ, अब क्या होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ा है आपने? डू यू नो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व? ये क्या होता है? ये यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में यहाँ पे होता है। और हम मानते हैं हमारी जितना भी पॉपुलेशन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस, यानी प्लस माइनस 3 सिग्मा के बीच में। ये 3 है, ये 2 है, ये यहाँ पे क्या कहते हैं 1 है, ये 0 है, इधर भी ये प्लस में होता है, ये -1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और ये मीन में मीडियन, इस तरह से डिवाइड होता है। और हम ये मान के चलते हैं प्लस माइनस 3 सिग्मा के बीच में ऑलमोस्ट 95 और 99% ऑफ पॉपुलेशन आ जाती है। तो एनी दिस कॉन्सेप्ट सेज, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व सेज दैट कि all the variables, or you can say all the constructs, suppose it is a like we are talking about intelligence or personality. Suppose take an example of intelligence. So अगर आप देखें तो क्या होगा, every quality is distributed normally in population. ये एजम्पशन है, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो सपोज आईक्यू है, तो कुछ लोग, ज्यादातर लोगों का आईक्यू कैसा होगा, यहां पे आएगा, एवरेज आईक्यू में आएगा। इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा है, सुपीरियर जिनको हम बोल सकते हैं, या हाई आईक्यू बोल सकते हैं, वो एक्सट्रीम में होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनका आईक्यू बहुत कम है, लो आईक्यू, ठीक है। most of the people will lie, characteristics or IQ will lie in between these plus minus 2 sigma के बीच में रहता है। So we, तो सारी की सारी, चाहे वो पर्सनालिटी हो, और इट इज इंटेलिजेंस और एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, एवरीथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, जिसको हम बोलते हैं दैट इज दिस थिंग। सो अगर कुछ बहुत कम लोग कर पा रहे हैं टेस्ट को, इसका मतलब दे आर हाई ऑन इंटेलिजेंस, तो ये टेस्ट बाकी लोगों के लिए रिलायबल नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? या सिर्फ कुछ लोग ही, हाँ, तो अगर सारे लोग ही कर ले रहे हैं, जिनका कम आईक्यू, जिनका ज्यादा है, और जिनका बहुत ज्यादा है, सारे लोग ही कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो बहुत इजी है। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? तो इस तरीके से जब हम एक सर्टेन पॉपुलेशन पे टेस्ट करते हैं, तो वी ट्राई टू फाइंड आउट कि आइटम जो है वो इजी है या डिफिकल्ट, और हमें मॉडरेट डिफिकल्टी के लेने होते हैं, जैसा मैंने कल डिस्कस किया था। क्लियर? यस और नो? यस सर। क्लियर सर। If a test is composed only of the items of higher indices difficulty, only of lower indices difficulty, it will never be a good measurement. अगर वो सिर्फ हायर आईक्यू वालों को चेक करता है या लोअर के लिए करता है, तो वो अच्छा टेस्ट नहीं माना जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट डीलिंग विद द मेजर पॉपुलेशन, एंड द मेजर पॉपुलेशन लाइज बिटवीन दिस प्लस माइनस 2 सिग्मा। ठीक है, पढ़ा होगा आई थिंक बीए में, एमए में, जब भी आपने किया होगा, या स्टैट, इवन 12th में भी होती है, हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व वगैरह पढ़ते हैं, अगर हम स्टैट हमने पढ़ी है। सो ये रहता है, any test to be called a good measuring instrument must have some items of higher indices of difficulty, which should usually be placed at the beginning of the test, some items of the moderate indices difficulty 42 through 60%, which should preferably appear after that, and some items lower indices of difficulty which should appear last of all. Thus the test should have a normal distribution of the with respect to their indices difficulty. So अब इसको मैं एक बार समझा देता हूं आपको, अगर नहीं समझ में आया है। ये आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, ठीक है। सो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में हम क्या करेंगे,
क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि सारे जो कंस्ट्रक्ट हैं दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जस्ट लाइक इंटेलिजेंस। तो सिमिलरली टेस्ट के जो भी आइटम होते हैं वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। मेजर आइटम आपके मॉडरेट डिफिकल्टी के हों, जिनको ज्यादातर लोग कर लें। कुछ आइटम्स ऐसे हों जो थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो बहुत ही इजी होंगे। तो ओवरऑल इसका डिफिकल्टी लेवल 0.5 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि भाई ये लोग जो है डिफिकल्टी लेवल जब हाई होगा तभी तो हमें पता चलेगा कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है कौन कम इंटेलिजेंट है। बिकॉज नहीं तो अगर बहुत इजी है तो सारे लोग ही कर लेंगे। तो यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट विच इज एवरेज IQ वाला पर्सन एंड हु इज लाइक लो IQ वाला पर्सन। तो डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी टेस्ट का कम हो जाएगा। और सिमिलरली अगर सारे क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड हैं तो तब भी डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी खत्म हो जाएगी उसकी। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। समझ में आया? एनी क्वेश्चन? तो मेथड ऑफ आइटम वैलिडिटी इंडेक्स। सो अब ये तो डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी इंडेक्स क्या करता है, कैसे करता है, वी टॉक्ड अबाउट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड ऑफ आइटम वैलिडिटी इंडेक्स। ठीक है, आइटम वैलिडिटी इंडेक्स क्या है? बेसिकली there are two important methods of determining the difficulty value of the item: method of judgment, method of the empirical method। दो मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, empirical method and the method of like empirical method, method of judgment। ठीक, अब method of judgment क्या है? In this method the difficulty value of an item is determined on the basis of judgment of experts। जो मैंने बोला था ना, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है हमें। तो हम एक्सपर्ट्स, सपोज आप IQ का बना रहे हैं टेस्ट, सो यू नीड पीपल हु आर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ IQ इंटेलिजेंस। सो दिस मेथड of difficulty value of an item is determined the basis of judgment of experts। Item are given to the group of expert with the instruction to rank the items in their increasing order of difficulty। कि कौन ज्यादा डिफिकल्ट है कौन कम डिफिकल्ट है उसमें उनको रैंक करना है। Subsequently the test constructor takes a final decision, keep in view the commonality of the ranks assigned to each item by different judges and experts। Suppose IQ के 10 एक्सपर्ट हैं, उनको टेस्ट हमने दे दिया, देने के बाद में उनको बोला कि आप इनमें जो आइटम्स हैं उनको क्या करना है, आपको रैंक करना है, कौन ज्यादा डिफिकल्ट है कौन ज्यादा इजी है। और एंड अकॉर्डिंगली क्या करेंगे हम, जब 10 के 10 एक्सपर्ट्स का व्हाट नंबर ऑफ लाइक whatever number you have taken, you have got that ranking, right? Then you will see what are the common ranking between them। So from that you will get an idea कि अगर 10 में से 8 जजेस ने किसी क्वेश्चंस को, एक्सपर्ट्स ने किसी क्वेश्चन को मॉडरेटली डिफिकल्ट बताया या हाईली डिफिकल्ट बताया एक ही क्वेश्चन को, इट मींस क्या है कि वो मॉडरेटली डिफिकल्ट हो सकता है या हाईली डिफिकल्ट हो, वॉट एवर द रैंकिंग इज। ठीक है, सो दैट इज द मेथड ऑफ जजमेंट। नाउ द एम्पिरिकल मेथड, क्लियर है? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कॉमन सेंस है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। मतलब बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? सो दैट आपको याद रहे, एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड somewhere in your thesis or further in your work, you will like be able to understand these things। Another thing is for your exam, that is a like short term goal is your exam. If you get any question related to that, so that you can write, it is a very simple things। Then we are coming to empirical method। Empirical method, also called a statistical method,
is the basic of scientific method determining the index of difficulty of an item. There are two common statistical methods through which the index of the difficulty can be estimated. So empirical का मतलब ये होता है objectively. भाई experts subjective भी हो सकते हैं. तो how you can determine empirically? So that is like using some kind of statistical method. So वो हम कर सकते हैं. One method determine index on the basis of the response of all examinees, whereas another method determines the index on the basis of the responses of only a portion of examinees. So कैसे करते हैं? One method determine the index on the basis of किसके basis पे? Responses of all the examinees. भाई आपने जिनके ऊपर टेस्ट किया है, जिनको एग्जामिन किया है, उनमें कितने कौन से क्वेश्चन को कितने लोगों ने सही किया. सपोज 100 में से 100 लोगों ने सही कर दिया, इट मींस दैट इज एन इजी आइटम. 100 में से सिर्फ 2 लोगों ने किया उस क्वेश्चन का आंसर सही, तो इसका मतलब दैट इज ए डिफिकल्ट आइटम. तो डिटरमाइन द इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ ओनली पोर्शन ऑफ द एग्जामिनेशन. कि हमने उनमें से कुछ एक को ले लिया, 1000 लोगों पे किया या 100 पे किया, 100 में से हमने 15, 20, 30, 40 whatever like numbers we have taken, and according to that we have decided कि कौन सा आइटम कौन सा क्या कहते हैं डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है. So let's see on the basis of response of examinees for all the examinees for dichotomous item work where correct answer is scored 1 and incorrect answer is 0. Like dichotomous means you feel good, yes or no. That is a dichotomous. Either you feel good or your mood is okay or not. So that is a dichotomous items, right? Or agree disagree kind of thing, right? So उसमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? Suppose yes को हमने 1 स्कोर दे दिया और no को we have given 0. तो index of difficulty can be determined the following formula: P is equal to R divided by N, where P is the index of the difficulty, R is the number of examinees, कितने लोगों को आपने लिया, who passed the item, and N is the total number of the examinees who take the test. So it is a kind of ratio you can say कि 100 लोगों ने दिया, 100 लोगों में से 10 लोगों ने ठीक किया, तो हमें क्या करना है कि 10 हमारा R हो गया and divided by N, that is 100. तो 10 divided by 100. सिंपल है. समझ में आ रहा है? इसमें कोई भी सिर्फ रेशियो है ना. दैट इज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. तो अब जिसका ज्यादा आएगा स्कोर वो ज्यादा इजी क्वेश्चन होगा, जिसका कम आएगा वो उतना हार्ड क्वेश्चन होगा. तो दिस इज अ सिंपल थिंग. And the index of difficulty from a certain portion of the group of examinees, like the formula for determining the index on the basis of the extreme groups is given below. P equal to R plus RL NU divided by NU plus NL, where the P is the index of difficulty, we know that thing already, and R is the number of examinees answering correctly in the upper group. RL is the number of the examinees answering correctly in the lower group. अभी मैं इसको बताऊंगा अगर नहीं समझ में आ रहा है. N is the number of examinees in the upper group, जैसे पहले हमने किया. मतलब N is the same thing. P is the similar, same thing, same meaning, having same meaning as in earlier one. The NL is the number of examinees in the lower group. तो अब क्या है, ऐसे समझते हैं, इसको हम बना देते हैं. ठीक है, तो ये आपका हो गया अपर ग्रुप, ये हो गया आपका लोअर ग्रुप, यानी जो एवरेज से नीचे हैं, जो एवरेज से ऊपर हैं. ठीक है, एवरेज से ऊपर कौन से क्वेश्चन कर पाएंगे? जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दे कैन डू इट. ये वाले बहुत इजी वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे, एवरेज वाले भी नहीं कर पाएंगे, ये वाले भी नहीं कर पाएंगे, चांसेस कम है उनके. ठीक है, तो क्या हो गया, हमने क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको समझने की जरूरत है. इसको सिर्फ पढ़ने रट्टा मारने की जरूरत है. एक बार आप समझ लेंगे देन इट इज लाइक वेरी इजी. सो
R is the number of examinees answering correctly in the upper group. यहाँ पे R क्या है, जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं अपर ग्रुप के. RL is the number of examinees answering correctly in lower group. ये लोअर ग्रुप वाले लोग हो गए जो करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं. N is the number of examinees in upper group. ये अपर ग्रुप वाले हो गए N. ठीक है. NL लोअर ग्रुप के जो नंबर्स हैं वो हो गए. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, आप देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे. P इक्वल टू R. R हो गया आपका क्या, अपर ग्रुप का रिस्पॉन्स जिन्होंने करेक्ट आंसर दिए, प्लस RL लोअर ग्रुप में किसने कितना रिस्पॉन्स दिया, राइट आंसर्स दिए. N U लिख गया यहाँ पे, अपर मतलब अपर कह सकते हैं आप, या RU भी लिख सकते हैं, एक को RL लिख सकते हैं, दैट इज N. तो ये हो गया आपका डिवाइडेड बाय, इन दोनों का प्लस किया, डिवाइडेड बाय अपर ग्रुप का नंबर और लोअर ग्रुप का नंबर. अगेन यहाँ पे रेशियो निकल रहा है. द ओनली थिंग, यहाँ हमने सबको नहीं लिया, यहाँ पे हमने सिर्फ अपर एंड लोअर पीपल जिन्होंने या तो लो स्कोर किया है या फिर जिन्होंने हाई स्कोर किया है, वी हैव टेकन दीज टू ग्रुप्स ओनली. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट लाइक सर्टेन पोर्शन हम इसमें ले रहे हैं. एंड दैट इज क्वाइट ओके आल्सो. हमारे पास हमें मिल जाएगा कौन से बहुत इजी हैं, कौन से बहुत डिफिकल्ट हैं. क्लियर? yes. दो चीजें क्लियर हो गई. डिफिकल्टी लेवल कैसे डिफाइन करते हैं, है ना? हाँ सर. और क्या था डिफिकल्टी, और इससे पहले नंबर 1 क्या था, याद रखना. डिफिकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन, और एक चीज थी, क्या था मुझे भी नहीं याद आ रहा है, बोलो. वैलिडिटी. वैलिडिटी ऑफ द क्वेश्चन, डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन, एंड अब आता है आइटम डिस्क्रिमिनेशन. कैसे एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट होते हैं. तो आइटम डिस्क्रिमिनेशन, power or validity of the item to be defined as the exact to which success and failure on the item indicates the position of the trait or achievement being measured. यानी जो हम मेजर करना चाह रहे हैं, क्या हम वही मेजर कर रहे हैं? क्या हम IQ असेस करना चाहते हैं, तो हमारा क्वेश्चन, हमारा आइटम क्या IQ को ही असेस कर रहा है या कुछ और बता रहा है? ठीक है, ये हमने कल बात की थी. तो कैसे करते हैं? द पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेटिंग आइटम में बी डिफाइंड एज वन इन विच प्रपोर्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर इज हायर इन द अपर ग्रुप. जो आइटम्स हमने दिए, हायर ग्रुप का मतलब अभी समझ में आ रहा है, अपर ग्रुप का कि क्या होता है, जो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट के ऊपर. तो आइटम में बी डिफाइंड एज वन इन विच proportion or percentage of correct answer is higher in the upper group. तो वो आइटम्स जिनमें अपर ग्रुप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, दैट इज, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेटिंग आइटम्स. क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेटिंग आइटम्स. दिस वन. ठीक है, नंबर 1. नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेटिंग आइटम्स क्लियर हो जाएगा, पहला बताया, दूसरा भी आपको समझ में आ जाएगा. आई एम जस्ट like reading this. Negatively discriminating item may be defined as one in which proportion of percentage of correct answer is lower in the upper group. क्या होगा? Negatively discriminating क्या होंगे? वो आइटम्स जिनके करेक्ट आंसर्स अपर ग्रुप नहीं दे पाएगा. तो क्यों, इसका मतलब क्या हुआ? They are very difficult item. Even upper group is not able to give the right answer. Then it means they are not a good discriminating ability. भाई तो क्या डिस्क्रिमिनेट करेंगे? लोअर वाले भी नहीं कर पाएंगे, जो अपर नहीं कर पा रहे हैं, मॉडरेट वाले भी नहीं कर पाएंगे. So they are. It is not describing it, मतलब discriminating it, like whatever character you are assessing correctly. Non-discriminating items may be defined as one in which the percentage or proportion of correct answer is equal or approximately equal in both the upper and lower group. अब lower group और upper group दोनों ही आंसर दे रहे हैं, तो किसको डिस्क्रिमिनेट करोगे आप? कैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे?
भाई जिसका IQ 100 है वो भी आंसर दे रहा है, राइट? एंड द पर्सन हु हैज हैविंग लो IQ वो भी राइट आंसर दे रहा है. तो हाउ वी विल डिस्क्रिमिनेट कि भाई हाई IQ किसका है एंड लो IQ किसका है? सिमिलरली फॉर अदर कंस्ट्रक्ट आल्सो लाइक पर्सनालिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ऑल दोस थिंग्स. इज इट क्लियर? या कुछ और बताना है मेरे को? इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैं बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ विद सम अदर एग्जांपल. तो इनमें से कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो हम नहीं लेंगे, हटा देंगे अपने टेस्ट से? एनीवन गेस? नाउ इट इज क्लियर, टेल मी. Negatively discriminating item. कौन से आइटम? Negatively discriminating. और कौन से रखेंगे? Positively discriminating and non-discriminating. नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग क्यों रखेंगे सर? वाई विल? भाई जो डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं रहे उन आइटम्स को रखने की जरूरत क्या है? राइट हम पॉजिटिव तो नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेटिंग आइटम्स और एज वेल एज द नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग आइटम्स बोथ विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टेस्ट. जो कर ही नहीं रहे हैं नेगेटिवली, मतलब जो सिर्फ जो हायर लेवल वाले भी नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या क्या कैसे डिस्क्रिमिनेट करेगा? द पीपल हैविंग हाई IQ दे आर नॉट एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस. तो इट इज ऑब्वियस दैट द moderate IQ people and the lower IQ people, they are also not able to do this question. So nobody is able to do that question. So how it will help us? And other thing is non-discriminating. Everyone is doing those items. You cannot discriminate. You will not be able to discriminate which one like is a group having high IQ or low IQ or moderate IQ. So both are the questions जो हैं वो हमारे काम के हैं ही नहीं, हमारे टेस्ट में किसी काम के नहीं रहेंगे. तो why we will use those tests? क्लियर है? Yes, sir. जी सर. ओके. अब आता है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो हम अभी बात कर रहे थे. तो देयर आर टू कॉमन वेज डिटरमाइनिंग द इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय अप्लाइंग टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑन द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन और परसेंटेज. ये दो प्रोपोर्शन और परसेंटेज के बीच में कोरिलेशन हम निकाल सकते हैं, सिग्निफिकेंस सॉरी डिफरेंस है कि नहीं है. अब सिग्निफिकेंस डिफरेंस के लिए टेस्ट होते हैं, जैसे फैक्टर एनालिसिस करते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं, रिग्रेशन निकालते हैं. आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. तो सपोज मेरे पास अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप के स्कोर्स आ गए, उनके बीच का कोरिलेशन हम निकाल सकते हैं कि अगर अपर ग्रुप का स्कोर बढ़ रहा है, लोअर ग्रुप का भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग हो गया, क्योंकि दोनों ही कर रहे हैं वो तो टेस्ट, पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है, राइट? सो तो अप्लाइंग द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन और परसेंटेज. प्रोपोर्शन हमें पता है लोअर एंड हायर, ये मिडिल वाला जो हमारा पोर्शन है, बाय अप्लाइंग कोरिलेशन टेक्निक्स, ऑलरेडी मैंने बताई दिया आपको. ठीक है. सो ये सब तो समझ में आ रही है बात. ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, और ये हाईली लाइक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको शायद ही कभी पढ़ाए जाते हों. यूजुअली MA वगैरह लेवल पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, इवन MPhil में भी नहीं पढ़ाया जाता, सच बताऊं मैं. ठीक है. तो क्योंकि स्टूडेंट्स को भी लगता है कि बहुत ये स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च है, बहुत हार्ड है यार. तो हार्ड इसलिए है क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा, कई बार हम नहीं समझते. तो इसको बेसिक कॉमन सेंस से अगर हम समझेंगे प्रॉपरली तो इट इज वेरी इजी थिंग, इट इज नॉट ए वेरी हार्ड कोर थिंग, है ना. सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन और परसेंटेज, इसको हम समझते हैं. ठीक है. जो फर्स्ट वन था, एक तो कोरिलेशन था, इसके बाद में कोरिलेशन वाला हम करेंगे. तो क्या है, इन दिस मेथड एग्जामिनीज आर डिवाइडेड प्रेफरली इनटू इक्वल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल स्कोर्स. दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया बेस्ड ऑन द स्कोर. फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग टू एक्सट्रीम ग्रुप्स, the total scores are arranged from highest to lowest, then top 27% and bottom 27%.
हो गया ना, लोअर वाले अपर वाले जो मैंने बताया था। तो 27% ऊपर के या 25% ऊपर के और नीचे के 25%, ये बीच के 50% हम ये मान के चले 27% क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू जो हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है, ये हम मानते हैं बीच में मैक्सिमम लोग रहते हैं। पढ़ लेना, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं कि कितना परसेंटेज कहां पे पड़ता है, ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लेना, सो यू विल गेट टू नो। ठीक है, तो ऊपर के 27%, नीचे के 20% ले लिए उनके जिन्होंने स्कोर किया, अपर 20% हायर स्कोर्स, 20% लोअर स्कोर्स। when the proportion of the examinees passing in the upper group in the low and in the lower group has been determined, critical ratio can be applied to test the significance of the difference between the proportion of these two groups compared with their own standard errors. Mean, median, mode, standard errors अगर होगा सिलेबस में तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज आपको अपने आप से पढ़ना पड़ेगा। तो वहां पे हम स्टैटिस्टिक्स लगा लेते हैं उन स्कोर्स में कि भाई क्या ये एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो मेरे लिए बेकार है, नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग हो गया वो। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? है ना? तो जी सर, वही है, इफ द डिफरेंस कम्स टू बी, लॉजिक समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस समझ में आ रहा है इसके पीछे क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दैट, स्टैटिस्टिक्स तो कर ही लोगे आप, ऐसा कुछ वो नहीं है। नाउ इट इज लॉट ऑफ टूल्स आर देयर जो इजीली कर लेते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अनटिल अनलेस यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आप स्टैटिस्टिक्स यूज कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है और क्यों कर रहे हैं। तो व्हेन यू आर डूइंग एनी रिसर्च और यू इवन स्टडीइंग रिसर्च, so you should know what you are doing, how you will do, and what may be the possible results. So that you should know, that things should be very clear in your mind, then only you can do a proper research or you can create a proper test. So the difference comes to be significant, the item accepted as one which discriminate, the determinants of the critical ratio is that does not tell how well each item discriminate, and is the amount of discrimination power of the each item is not revealed. तो अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो हम आइटम्स लेंगे, नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये आपका होमवर्क भी मैं आपको दे रहा हूं, आपको पढ़ना है व्हाट इज क्रिटिकल वैल्यू। यहां पे लिखा हुआ है क्रिटिकल रेशियो, व्हाट इज क्रिटिकल रेशियो इन स्टैटिस्टिक्स। ये आपका काम है, पढ़ के आना है, क्योंकि ये आगे भी आएगा। कैसे हम करते हैं? काई स्क्वायर्स के थ्रू। इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें हम थोड़ा सा बताऊंगा मैं, कोरिलेशन टेक्निक्स, आइटम्स एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशंस, नॉर्म्स, derived scores, types of norms, developmental norms, चलो ये age equivalent norms, grade equivalent norms, ordinal scales, ये हो गया within group norms, ये percentiles क्या क्या है वो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, फिर वो मैं कितना आज अभी कर सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ, क्योंकि ये क्लास में तो नहीं होने वाला है ये अब, है ना। स्टेनाइन आ गया आपका, ये आपने पढ़ा होगा, स्टेनाइन, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ठीक है, अभी है, काफी है। तो ये सारी चीजें टेस्ट का क्या, और इससे एक और बेनिफिट है आपको, वो ये है कि व्हेन यू आर बाइंग एनी टेस्ट और यू आर चूजिंग एनी टेस्ट फॉर योर रिसर्च और फॉर योर क्लिनिकल प्रैक्टिस, यू कैन चेक इसका रिलायबिलिटी क्या है, इसका वैलिडिटी क्या है ना। हमें ये टेस्ट यूज करना है कि नहीं करना है, दैट इज ऑल्सो यू विल लर्न। ये स्टैटिस्टिकल मेथड है कि कैसे कैसे हम डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी है उसके अंदर या नहीं है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस स्टेट में भी आई थिंक आपके सिलेबस में आएगा काई स्क्वायर वगैरह, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक में कहीं पे, यहाँ ब्रीफली थोड़ा सा बता देते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। गिलफोर्ड
In 1954, recommended the use of the chi-square test as a measure of index discrimination when there are equal numbers of examinees in both the extreme groups. ये कहाँ देखो कंडीशन लग गई, कंडीशन क्या लग गई? The condition is कि there should be equal number of participants, examinees in upper group and lower group and extreme groups जो हैं, suppose एक में 10 numbers है तो दूसरे में भी 10 होना चाहिए, then only you can use chi-square. What is chi-square? That we will discuss in next class. Where n refers to the number of total examinees. ये तो हमें पता है total number. PU means upper वाले का, PL means lower. Proportions जो है examinees का है वो आपका PU and PL से denote होता है and Q is the equal to 1 minus P. ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है. डिटेल में हम इसको नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स जब करेंगे तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे. हाउएवर द यूज ऑफ द chi-square as a measure of the index of discrimination has some limitation. It can used only with the larger sample. बड़े सैंपल के साथ आप कर सकते हैं. Item falling in middle range of attractiveness for the examinees. Moreover, the chi-square test only reveals whether or not the item is discriminating. सिर्फ इतना बताता है discriminating है या नहीं है. It gives no idea about amount of discrimination. ये नहीं बताएगा कि कितना discriminate कर रहा है, ये सिर्फ इतना बता देगा कि ये discriminate करता है या नहीं करता है. तो ये इसकी लिमिटेशन है. लार्ज सैंपल पे आप कर सकते हैं. That's it. कोरिलेशन टेक्निक्स ऑलरेडी मैंने बता दिया, अगर पढ़ा है आगे हम इसको और करेंगे डिटेल में. कोरिलेशन यूजुअली 0 to 1 के बीच में वेरी करता है. तो अगर +1 से -1 तक, यानी कोरिलेशन आपका -1 to 0 to +1 में आपका डिविएट करता है. -1 का नेगेटिव कोरिलेशन, 0 का मतलब नो रिलेशनशिप एंड +1 का मतलब हाईली कोरिलेटेड. +1 या -1 नहीं आता है. 0.8, 0.75, 0.9, दैट इज ए गुड कोरिलेशन वी कैन से. सो इससे भी हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको. जैसा मैंने अभी बताया था कि आपने दोनों केस को निकाले, आपने देखा दे आर कोरिलेटेड और दे आर नॉट कोरिलेटेड, राइट? So that we can do. And then large and this is usually calculated using point by serial correlation. कौन सा? Point by serial correlation. अब ये आपको जब आएगा आगे क्लास में तो मैं पढ़ाऊंगा. Otherwise अगर आप पढ़ना चाहते हैं you can research on that, you can read it. A large item total correlation indicates that item is measuring the same constructs as the overall test measures. So अगर हम देखें कि भाई अगर ज्यादा कोरिलेशन है तो आइटम वही एक आइटम और दूसरा आइटम एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं. कहने का मतलब ये है. आइटम एनालिसिस एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, है ना? तो इसमें डिटेल में नहीं जा रहा. एग्जांपल मैं साथ साथ आपको बताते हुए आया हूँ, है ना? तो या मैं रीड कर दूं, बता दूं, या I can skip whatever you people say. चलो बता देता हूँ क्योंकि अभी 5 मिनट है और ये की कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह. So a test item may have an item difficulty of 0.7 and item discrimination of 0.40. यानी डिफिकल्टी लेवल क्या है? 0.7 यानी हायर साइड में है. आइटम डिस्क्रिमिनेशन क्या है? 0.40. ठीक है, तो this means that 70% of the test takers pass the item and more students in the top group than bottom group got the item correct. यानी 70% लोगों ने कर लिया तो ऊपर वालों ने ज्यादा किया ना, नीचे वाले लोग उतना नहीं कर पाए. Then another example of item difficulty is 0.40 and item discrimination 0.35. This means that only 50% of the test takers answered the item correctly. ठीक है, केवल 50% करेक्टली कर पाए. एंड मोर इंडिविजुअल्स इन द बॉटम ग्रुप आंसर द करेक्टली, क्योंकि भाई क्या है, डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी कम है, डिफिकल्टी लेवल कम है. ठीक है, नीचे के लोगों ने करेक्ट आंसर्स दिए हैं. दिस माइट बी एन आइटम दैट नीड रिवीजन. कि हमें देखना कि एवरेज डिफिकल्टी का क्वेश्चन हमें चाहिए तो उसको हम रिवाइज कर सकते हैं.